Good morning, students. In our previous video, we have started the chapter Adaptations in Animals and we have studied the term adaptation. What does it mean? The changes that a living thing make in its body features in order to survive in the habitat is called adaptation. जो changes living things अपनी body features में या body में लाते हैं in order to survive in the habitat, in the condition of their habitat is called adaptation. Now, then we studied the adaptation to habitats, means animals which are grouped according to the place where they live. First is terrestrial animal, which the animals which live on land, and then aquatic animals, the animals which live in water, and then amphibians, the animals which can live both on land and in water, and then arboreal animals which live on trees, and then aerial animals which live in air, or they the animals which fly, which can fly. Okay, so today we are going to start a new topic, that is adaptation for food. But as you all know that all the animals are not same. So some animals eat food like plants, and some animals eat flesh, and some animals eat both plants and flesh. So all the animals do not eat same kind of food. So according to the type of food they eat, they are classified as into three types. First is herbivores, then carnivores, then omnivores. Herbivores are the animals which eat plants only, means they are plant eaters, and their example is cow, goat, or etc. Carnivores are the flesh eaters, for example lion, tiger. They eat only flesh or the other animals. And then omnivores are the animals which eat both plants and flesh. For example humans, as we eat plants and flesh both, and for example dog, birds, etc. So these are the animals which characterized on the basis of type of food they eat. So as we can see that these type of animals do not eat same kind of food. So to eat that food, to eat that different kind of food, their mouth and their limbs are adapted to the type of food they eat. उनका माउथ और उनके जो पैर हैं वो उसी तरह से अडेप्टेड होते हैं जिस तरह का वो खाना खाते हैं. ठीक है. लाइक प्लांट ईटर्स के जो टीथ हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट टीथ. उनके स्ट्रेट एज टीथ होते हैं टू बाइट द grass. ठीक है. And they have broad teeth at the back to grind the leaves to make the fine paste. ठीक है. क्योंकि उनको बेटा किसी की फ्लैश नहीं खानी है, दे डोंट नीड टू टीयर द फ्लैश, स्ट्रॉन्ग फ्लैश को नहीं उन्होंने टीयर करना है, तो उनके जो टीथ हैं वैसे ही अडेप्टेड हैं. जैसे आप देख सकते हो काऊ के कैसे टीथ हैं, स्ट्रेट एज टीथ टू बाइट द grass, and they have broad teeth at their back to make the fine paste of that leaves. ठीक है. और the food they eat. ठीक है. So now next is carnivores. The animals which eat flesh have the sharp tearing teeth. Why they have sharp tearing teeth? As you can see, they have tearing teeth. This ये है शार्प टीयरिंग टीथ है ना उनके. क्यों है? बिकॉज दे हैव टू किल द एनिमल, दे हैव टू टीयर द फ्लैश ऑफ दैट एनिमल, ताकि वो उस एनिमल को खा सकें. ठीक है. सो दे हैव शार्प टीयरिंग टीथ एंड स्ट्रॉन्ग च्यूइंग टीथ. अब स्ट्रॉन्ग च्यूइंग टीथ क्यों होते हैं? बिकॉज हमने देखा है कि जो ये एनिमल्स होते हैं ये बोन्स भी साथ में च्यू कर जाते हैं. ठीक है. तो टू chew that strong bones, they have strong chewing teeth at their back. ठीक है. So they have sharp tearing teeth and strong chewing teeth to tear the flesh and chew the bones. They also have a sharp claws to catch their prey. उनके बहुत शार्प क्लॉज होते हैं, पैर होते हैं. ठीक है. सो दैट दे कैन कैच देयर प्रे, ताकि वो दूसरे एनिमल को इजीली पकड़ पाए. ठीक है. जैसे आपने काऊ के पैर देखे होंगे, वो इतने शार्प नहीं होते, लेकिन लॉयन के या डॉग्स के, कैट्स के जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प नेल्स के साथ शार्प होते हैं. ठीक है. उनके क्लॉज, सो दैट
दे हैव बिकॉज दे हैव टू कैच देयर प्रे। काऊ को तो किसी एनिमल को पकड़ के नहीं खाना है, ठीक है, तो उसके जो लिम्स हैं वो उसी तरह से अडेप्टेड है। लेकिन जिन एनिमल्स ने किसी एनिमल को या किसी अदर एनिमल को पकड़ के उसको खाना है, ठीक है, जो कार्निवोर्स हैं उनके जो क्लॉज हैं वो बहुत शार्प होते हैं, सो दैट दे कैन ईजिली कैच इट। नाउ द बर्ड्स, as you can see in this picture, the birds have the beaks and claws. Why? Because they catch the fishes with the beaks and claws के साथ अपने food को catch करते हैं ना वो, ठीक है। So they have beaks and claws of the birds are also suited to the type of food they eat. जैसे हर बर्ड की जो बीक्स होती है वो सेम नहीं होती, जो बर्ड जैसा खाना खाता है उसकी बीक वैसे ही अडेप्टेड होती है। एंड द बर्ड्स दैट हंट एनिमल्स हैव शार्प क्लॉज एंड शार्प आईसाइट टू कैच देयर प्रे। जो बर्ड्स जैसा खाना खाते हैं वैसे ही उनकी बीक्स और उनके क्लॉज अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। अगर कोई बर्ड्स, जैसे ये ईगल है, ईगल दूसरे एनिमल्स को हंट करके खाती है, ठीक है, दूसरे एनिमल्स को पकड़ती है, ठीक है, तो उनके शार्प क्लॉज होते हैं एंड उनकी शार्प आईसाइट होती है ताकि वो अपने प्रे को, अपने खाने को दूर से ही देख सके और उनको कैच कर सके। नाउ अडेप्टेशन टू क्लाइमेट। नाउ हम भी जैसे बेटा जब समर्स आ जाती हैं तो हम लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, और जब विंटर्स आ जाती हैं तो हम फरी कोट्स पहनते हैं, ठीक है, फरी जैकेट्स पहनते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो फरी कोट्स होते हैं वो हमें ठंड से बचाते हैं, ठीक है, दे कीप अस वार्म। एंड कॉटन क्लोथ्स से हमें क्या होता है, हमारी एक्सचेंज होती है, हमारी हीट और हमारे अंदर एयर एंटर करती है, सो इट इज़ सुटेबल फॉर समर्स। द सेम वे एनिमल्स भी जिस क्लाइमेट में रहते हैं उसी क्लाइमेट में उनकी बॉडी, उनकी स्किन उसी तरह से अडेप्ट हो जाती है। लाइक just as we wear the furry coats in cold and light cotton clothes in summer, the skin of the animals help to protect them from harsh climatic condition. अब animals तो कोई जैकेट्स वगैरह नहीं पहनते हैं, तो उनकी स्किन ही उसी तरह से अडेप्ट हो जाती है ताकि वो जिस कंडीशन में, जिस क्लाइमेट कंडीशन में रह रहे हैं उस क्लाइमेट कंडीशन से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। For example, the animals which live in very cold places like high mountains or polar regions, उनकी बॉडी पे थिक फर होती है, ठीक है, जैसे आपने पोलर बियर देखा होगा, ठीक है, टीवी पे, तो उसकी बॉडी पे क्या होती है, थिक फर एंड अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उनकी स्किन के अंदर एक फैट की लेयर होती है जो कि उसको एक फ्रीजिंग कंडीशन से, जो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती है उससे उनको प्रोटेक्ट करती है। एज जो फर होती है दैट ट्रैप्स द एयर एंड हेल्प्स द एनिमल्स टू रिमेन वार्म। जो फर है वो एयर को ट्रैप कर लेती है, ट्रैप मतलब पकड़ लेती है, अंदर एंटर नहीं होने देती, एंड उसीलिए जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी वार्म रहती है, ठीक है। वेयर एज द फैट इंसुलेटर, जो हमने पढ़ा है कि एक फैट की लेयर होती है, वो कैसा काम करती है, एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे आपकी वाटर बॉटल्स होती हैं जिसमें आप अगर गर्म पानी डालते हो तो वो गर्म रहता है काफ़ी देर के लिए, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंसुलेटर, ठीक है, कि वो हीट को बाहर नहीं जाने देते। हमारी नॉर्मल बॉटल्स में तो पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है, सो उनकी जो फैट है वो भी इंसुलेटर का काम करती है कि वो हीट को बाहर नहीं जाने देती और उनको वार्म रखने में हेल्प करती हैं। And the animals which live in hot places like deserts have a thick skin with very less hair on their body. क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि जो हेयर है उनके, जो फर थी वो एयर को ट्रैप कर रही थी, बॉडी तक पहुंचने नहीं दे रही थी, ठीक है। तो इसीलिए जो एनिमल्स हॉट प्लेसेस में रहते हैं उनके जो हेयर हैं वो बहुत कम होते हैं, सो दैट जो एयर है वो उनकी बॉडी तक इजीली पहुंच पाए, और उनकी जो स्किन है वो बहुत थिक होती है ताकि उससे ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, उनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट रह सके। जैसे बेटा आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो आप किसी कपड़े को सुखाने के लिए डालते हो,
तो उसमें से अगर आप उसको खोल के डाल रहे हो, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। लेकिन अगर आप लेयर्स लगा के रखते हो धूप में, तो उसकी ऊपर वाली लेयर सूख जाएगी, लेकिन नीचे वो वैसे ही मॉइस्ट रहेगा, ठीक है। उसी तरह से उनकी स्किन बहुत थिक होती है, ताकि उनकी बॉडी से जो वाटर लॉस है वो बहुत कम हो और उनकी स्किन मॉइस्ट रहे, ठीक है। So, the thick skin prevents the loss of moisture, and the absence of too much hair allows the heat to exchange. इस तरह से जो उनकी thick skin है और उनके less hair हैं, उनको hot climatic condition में adjust करने में help करते हैं. And one more thing, do you know that the layer of fat which is present under the skin of animals like whales and penguins, this fat layer is known as blubber, ठीक है। So there is a term blubber which means the fat layer which is present under the skin of animals like whales and penguin. जो whales और penguin के अंदर फैट की लेयर है, उस लेयर को हम बोलते हैं blubber, ठीक है। So this is for today. Read the chapter, the page number 73 and 74, and watch the video carefully. Thank you so much.